Hello student, today we are going to study next textbook problem number 18 and page number 108. Okay, in that problem we learn how to calculate closing amount of building fund, capital fund, and as well as depreciation using closing and opening balance of asset. Find out depreciation amount. Okay, in that video exactly we learn find out closing balances of capital fund, building fund, and as well as using opening and closing balances we find out depreciation of assets. Okay, understood everybody what we learn in that chapter? See, problem number 18. From the following receipt and payment account of Bhaurao Patil Polytechnic College, Nagpur, for the year ending 31st March 2019, and additional information. You are required to prepare income and expenditure account and as well as balance sheet as on 31st March 2019. See, here accounting year is what? 1st April 2018 to 31st March 2019. Understood everybody? Okay. See, remember current year because we require current year accounting. That's why remember current year is what? 2018-19. I'll read receipt and payment account. Receipt and payment account, the given first balance brought down, true balance brought down, cash rupees 12,000, amounted rupees what? 12,000 is the opening balance of cash, and bank 2 lakh rupees. Okay, see, next, to interest 60,000, to donation 7 lakh, to tuition fees 15 lakh, admission fees 65 lakh, term fees 4 lakh, drama receipt 1 lakh, rent from use of hall 6,000, legacies 60,000. Under bracket they given capital. Capital means what? Capitalize. That legacies whole amount can be capitalized. Okay, it's a hidden adjustment. Understood everybody? Receipt side all balances. Receipt side all balances are always income. What? All balances exclude cash and bank because the opening balances. Understood? Next, I'll explain one by one. Receipt side balances where we posted interest, we posted income side is credited to income and expenditure account. Donation again is credited to income and expenditure account. Tuition fees is credited to income and expenditure account. Admission fees credited to income and expenditure account. Term fee also credited to income and expenditure account. Dama receipt means what we received this one amount for drama purpose, so that can be income for our that particular college, so we credited to income and expenditure account. Next, rent from use of hall. Whatever hall of college they hire and they received rent for that hall amounted rupees 6,000. So is again income because that college received this amount, so is income, so we credited to income and expenditure account. Next one, the given legacies same as it is, we credited to income expenditure account, but here they mention capital means it's a capitalized, so we can less whole amount from legacies, and second effect we recorded capital fund, add under capital fund. Understood everybody? Receipt side. Then see payment side. Payment side they given first balance salary to teaching staff 15 lakh. How many? 15 lakh. Office 8,55,000. Printing and stationery 27,000. Books 88,000. Furniture 78,000. But under bracket they write purchase on 1st January 2019. Means that one is additional furniture.
Always remember, it's not the opening balance of furniture and assets, books also. It's additional furniture they purchased on 1st January 2019. 78,000. Drama expenses, whatever amount they spend on drama, that is what drama expenses. So 90,000. By postage 7,000, telephone charges 6,000, electricity 61,000, magazines and newspapers 6,500. By balance carried down cash 62,000 and bank 3,23,000. See, I'll explain one by one. Posting of payment side. Salary to teaching staff, that can be debited to income and expenditure account because the expenses. Office staff, again debited to income and expenditure account. Printing and stationery, debited to income and expenditure account is the expenses, that's why. Next one, they given books 88,000, that can be recorded balance sheet asset side and is a additional book value. Is what? Additional book value. Books value or books asset. Next one, furniture 78,000, same thing, we recorded or we posted balance sheet asset side. Drama expenses is a expenditure, that's why it's debited to income and expenditure account. Postage, same, everybody know postage. What is postage? Yes, uh, postage is related to courier and all that type of expenses. So it's expenses, so we recorded debited to income and expenditure account. Next one, electricity, again expenses, so debited to income and expenditure account. By magazines and newspapers, same, is the expenses, so again we recorded income and expenditure account, debited to income and expenditure account. And last one, balance cash in hand, sorry, balance carried down cash and bank, that can be recorded asset side. Is a closing balance of assets and cash and bank, so we recorded asset side. Understood everybody? Confirm. Whole problem I'll explain where we posted that payment and receipt amounts or balances. Okay, payment side mostly we posted income side, payment side we mostly posted expenditure and as well as asset side. Expenditure and asset side. And receipt side mostly we posted income side. Receipt side, whatever balance we seen, that all we posted income side. Okay, it's not necessary we posted to income side, but in that problem we posted all those balance income side. Okay, then I'll read additional information they given like that one in a tabular form. See, additional information they given in tabular form, particular 1st April 2018 and 31st March 2019. Here they given two balances of assets and liabilities opening as well as closing. See, what is here? यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, तो assets and liability के both one balances they given, opening and as well as closing. Okay, तो using that one हमें find out करना है depreciation क्या है assets के लिए. एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन क्या है, बिकॉज यहाँ पे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, जो रिसीट एंड पेमेंट थी उसमें एडिशनल एसेट का बैलेंस भी दिया था, एंड एज वेल द गिवन क्लोजिंग बैलेंस. तो ये सब देख के हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है हमें हमारी डेप्रिसिएशन अमाउंट. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देखो, यूजिंग दैट टेबल वी फाइंड आउट डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन एसेट्स. कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग एसेट्स है, ओपनिंग जो बैलेंस है उसके अंदर एडिशनल जो भी एसेट के बैलेंस है वो ऐड करेंगे और उसमें से क्लोजिंग बैलेंस लेस होगा, जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज आवर डेप्रिसिएशन अमाउंट. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कंफर्म. देखते हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम में हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अमाउंट. ओके, हियर दे गिवन बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क्स, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दैट वन बैलेंस, बिकॉज ऐसे भी हो सकता है उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, दैट्स वाई वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग अमाउंट. द नेक्स्ट वन दी वन कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस. द क्लोजिंग बैलेंस नॉट रिटर्न हियर बिकॉज ऑफ
एडिशन ऑफ सरप्लस और डिफिशिएंट, डिडक्शन ऑफ डिफिशिएंट. सो उसके बाद ही कैपिटल फंड का अमाउंट आएगा. दैट्स वाई वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया. सेकेंड एडजस्टमेंट, 60% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम. Whatever donation amount, that 60% amount can be transferred to capital fund and remaining amount we consider revenue income. Means what? अगर revenue income consider करते हैं तो remaining amount कहाँ पे लिखेंगे? इनकम साइड ही लिखेंगे. ओके ओके, याद रहेगा सबको. 60% अमाउंट जो भी डोनेशन की है वो हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है? बिल्डिंग फंड के लिए. उसमें से रिमेनिंग जो अमाउंट है वहीं पे रखनी है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड ही रखनी है. आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज ₹70,000. इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं दिए हैं और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड भी कुछ नहीं है. जस्ट ओनली दे गिवन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग फंड, मतलब डोनेशन, लीगैसीज एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी. मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बिल्डिंग फंड ट्रांसफरेशन है, कैपिटलाइजेशन है एंड एज वेल एज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना. इतना ही इस प्रॉब्लम में है. सबसे छोटा है बट इस टाइप से प्रॉब्लम भी आता है. ये 12 मार्क्स के लिए आएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए 12 मार्क्स के लिए है. बट आपको ये कंफर्म याद रखना है कि इस चैप्टर, इस प्रॉब्लम में हमें एग्जैक्टली क्या करना है. ओके, देन आई शो यू इन सॉल्यूशन. फर्स्ट वन वी आर क्रिएटेड हियर. फर्स्ट अकाउंट इज व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसे कहते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट वन कॉलम एक्सपेंडिचर एंड राइट हैंड साइड इनकम. याद रहेगा, कहते समय ऐसे कहते हैं हम इनकम एंड अकाउंट. मोस्टली टाइम बोर्ड एग्जाम में ऐसे होता है. जब हम पेपर चेकिंग करते तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते बच्चे, मतलब डेबिट साइड में उनका इनकम आता है, साइड में एक्सपेंसेस ही आता है. सो यू कैन रिमेंबर कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है. ओके, ठीक से सुनाई दे रहा है? आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपरली? ओके. यहाँ पे आपको डेबिट साइड में ऑलवेज कौन सा बैलेंस दिखेगा? एक्सपेंडिचर दिखेगा, और क्रेडिट साइड में इनकम. इसका नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है. फिर भी याद रखो क्या होगा वहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो तो भी याद रखो पहला वाला कॉलम एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वाला कॉलम income. Understood everybody? Confirm? Then I'll read one by one posting. Already I'll explain in receipt and payment, but again I'll explain. Salary to teaching staff 15 lakh outer column में लिखा है. Salary to office staff जो है वो है 8,55,000. हमारी एडजस्टमेंट थी, दिखाती हूँ एडजस्टमेंट फिर से. दिस है एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी ₹70,000. क्या है? ऑफिस स्टाफ की सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है. तो ये थी हमारी थर्ड एडजस्टमेंट थी. तो थर्ड एडजस्टमेंट का इफेक्ट किया है फर्स्ट यहाँ पे. थर्ड एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट. ओके, थर्ड एडजस्टमेंट का यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट किया है. क्या किया है? ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उस एक्सपेंसेस के अंदर क्या होते हैं? ऐड. तो 70,000 ऐड. एंड सेकेंड इफेक्ट वेयर बी रिकॉर्डेड. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है मीन्स इज व्हाट? पेबल अमाउंट है. एंड पेबल अमाउंट भी वेरी बी रिकॉर्डेड. ओके, पेबल अमाउंट भी रिकॉर्डेड लायबिलिटी साइड. ऑलवेज रिमेंबर पेबल अमाउंट भी रिकॉर्डेड लायबिलिटी साइड. फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे किया हमने? ऐड अंडर सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 70,000. एंड सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग ओएस मतलब पूछा था मैंने, मुझे बच्चों तो यहाँ पे बताती हूँ. ओएस मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म है O/S. आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ऑफिस स्टाफ ₹70,000. ये हो गया थर्ड एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट. ओके, दोनों इफेक्ट पता चले. पहला इफेक्ट कहाँ पे किया था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में सैलरी का बैलेंस था, उसके अंदर ऐड. एंड सेकेंड इफेक्ट भी रिकॉर्डेड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आपको दिख रहा ही होगा, मैंने उसे हाईलाइट भी किया है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं.
नेक्स्ट दिया है उन्होंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एज इट इज़ वी रिकॉर्डेड आउटर कॉलम, पोस्टेज आउटर कॉलम, टेलीफोन चार्जेस आउटर कॉलम, इलेक्ट्रिसिटी आउटर कॉलम, मैगजीन्स एज न्यूज़पेपर आउटर कॉलम। अभी वो डेप्रिसिएशन पेंडिंग रखते क्योंकि हमें एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना वो बैलेंस शीट में देखते हैं। ओके, इंटरेस्ट इनकम साइड देखो, अभी इंटरेस्ट 60,000 आउटर कॉलम। डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन फिर से दिखाती हूँ, क्या लिखा था वहाँ पे। डोनेशन के बारे में लिखा था 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। व्हाट, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। किसके लिए है, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन है, तो दैट डोनेशन अमाउंट ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। सो व्हाट वी डू, सो इसका फर्स्ट इफेक्ट होगा, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड उसका फर्स्ट इफेक्ट दिखेगा, लेस फ्रॉम डोनेशन 60% अमाउंट आ रही है 4,20,000, 70,000, 7 लाख के ऊपर 60% अमाउंट है 4,20,000. So whatever remaining amount we recorded this one account only. So is not need not required to revenue income. कहाँ पे इनकम साइड में जितने भी बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं, रेवेन्यू इनकम ही होते हैं. सो यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पे, सिर्फ आउटर कॉलम में 2,80,000 लिखेंगे. समझ में आया. पहला इफेक्ट क्या किया है, 60% अमाउंट इज ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड. सो वी लेस दिस वन अमाउंट. फर्स्ट फंड इफेक्ट हो गया बिल्डिंग फंड. सेकेंड एडजस्टमेंट थी, सेकेंड एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट हो गया. दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बिल्डिंग फंड है, लायबिलिटी साइड बिल्डिंग फंड है, उसके अंदर एड डोनेशन ₹4,20,000 दिखा सबको. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड देखो बिल्डिंग था, उसके अंदर हमने क्या किया है, ऐड किया है डोनेशन 4,20,000. अंडरस्टूड एवरीबडी. फर्स्ट इफेक्ट वेयर वी रिकॉर्डेड लेस फ्रॉम डोनेशन एंड सेकेंड इफेक्ट वी रिकॉर्डेड ऐड अंडर बिल्डिंग फंड. ये थी हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट. सेकेंड एडजस्टमेंट के दोनों भी इफेक्ट समझ में आए आपको. अगर वहाँ पे ऐसे लिखा है ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, फिर भी याद रखना है कि वो बैलेंस एज इट इज़ आउटर कॉलम में रखना है. सिर्फ 60% अमाउंट वी ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड. ओके, अंडरस्टूड. द नेक्स्ट वन बैलेंसेस देखते हैं. एडमिशन फी आउटर कॉलम, टर्म फीस आउटर कॉलम, ड्रामा रिसीट. एक्चुअली ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी रिकॉर्डेड ड्रामा रिसीट जो भी है ना वो इनकम साइड लिखते हो, और एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड ये लिखते तो भी चलेगा. अदरवाइज ये मेथड से लिखते तो भी चलेगा कि ड्रामा रिसीट में से ड्रामा एक्सपेंसेस लेस करो. एक्चुअली ये पोस्टिंग है, एडजस्टमेंट नहीं है. वो एक्सपेंसेस जो दिए 90,000 वो आप क्रेडिट डेबिट साइड लिखते तो भी चलेगा. यहाँ पे ऐसे करके दिखा, अभी ऐसे भी कर सकते हैं. आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक में देखो तो आपको पता चलेगा. देन नेक्स्ट वन रेंट फॉर हॉल. हॉल के लिए उन्हें रेंट मिला था, यहाँ पे रेंट रिसीव्ड ना. सो इज इनकम रेवेन्यू इनकम. सो वी रिकॉर्डेड वी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देन क्या कैलकुलेट करते बाद में देखते हैं. बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस था 6,11,000 वैसे लिखा एज इट इज़. बाकी बाद में देखते हैं. सिर्फ लीगैसिस के बारे में लिखा था ब्रैकेट के अंदर. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, अभी फिर से पीछे जाने से अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में देखो आप, लीगैसिस के सामने लिखा था कैपिटल. क्या लिखा था, कैपिटल. दैट मीन्स दैट होल अमाउंट ऑफ लीगैसिस कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड और दैट अमाउंट कैन बी कैपिटलाइज. क्या होता है मीनिंग उसका, दैट अमाउंट कैन बी कैपिटल. एवरीबडी नो मीनिंग ऑफ लीगैसिस. ओके, ठीक है. इसके पहले मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, लिख के रखने के लिए भी कहा था. याद रखो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए लीगैसिस कंसेप्ट बहुत जरूरी है. ऑब्जेक्टिव मतलब नॉट फॉर ओनली एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, वन वर्ड भी हो सकता है, या वन सेंटेंस के लिए भी हो सकता है. ओके, हो गया. तो लीगैसिस यहाँ पे उन्होंने ऐड किया बिकॉज लीगैसिस होल अमाउंट कैपिटलाइज हो रहा है. नेक्स्ट वन दिख रहा है आपको बिल्डिंग फंड. उसके बारे में इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी मैंने बताई है. एडजस्टमेंट क्या है, कैपिटल उसके अंदर 60% डोनेशन क्या हो रहा है, कैपिटलाइज हो, सॉरी डोनेशन फंड ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल फंड के अंदर. सो यहाँ पे सॉरी बिल्डिंग फंड के अंदर, तो यहाँ पे ट्रांसफर किया. देन लास्ट वन देख रहा है लायबिलिटी साइड. वो था आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, उसका सेकेंड इफेक्ट तो यहाँ पे किया है.
देन देखते हैं एसेट साइड। अभी यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे फोकस जरूरी करना जरूरी, बिकॉज यूजिंग दैट वन वी फाइंड आउट डेप्रिसिएशन अमाउंट। देखो बुक की वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस दिया था हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। बुक का ओपनिंग बैलेंस क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 9 लाख। कितने दिख रहा है 9 लाख। एंड क्लोजिंग कितना दिख रहा है 8,80,000। देखो अभी क्या करते हम, कैसे लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस है वो अंदर लिखते, ओपनिंग बैलेंस क्या लिखते हैं अंदर लिखते। एंड एज वेल एज रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड में बुक का और एक बैलेंस दिया था 88,000। कितना दिया था, तो वहाँ पे लिखेंगे ऐड एडिशनल परचेस, या सिर्फ परचेस लिखते तो भी चलेगा, परचेसेस लिखे। फिर टोटल होगी हमारी, ऐड करने के बाद टोटल इज व्हाट 9,88,000। हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ पे जाएगा, आउटर कॉलम में। ऑलवेज याद रखो, जो भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस दिया डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो। अभी 9,88,000 एंड 8,88,000 में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो डिफरेंस कितने रुपीस का देख रहा है, तो लेस करके देखो, 9,88,000 माइनस 8,88,000 कितने रुपीस का डिफरेंस दिख रहा है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ का, कितने 1 लाख का डिफरेंस दिख रहा है। सो ये हो गया डेप्रिसिएशन। पता चला कैसे कैलकुलेट किया हमने, जो भी ओपनिंग बैलेंस था एसेट का उसके अंदर एडिशनल एसेट का बैलेंस ऐड किया, और आउटर कॉलम में हमने क्या लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा। तो उसके सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो भी डिफरेंस दिखा या सब्ट्रैक्शन अमाउंट दिखी, दैट अमाउंट इज अवर डेप्रिसिएशन। सो बुक का डेप्रिसिएशन कितना मिला यहाँ पे हमें 1 लाख रुपीज़। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे हो गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन विदाउट परसेंटेज और विदाउट फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, फिर भी हमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी थी उन्होंने, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट विथ एडिशनल बैलेंस ऑफ एसेट्स। सेम एज इट इज देखते हैं फॉर फर्नीचर। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया था उन्होंने 3,26,000, जो आपको अभी यहाँ पे दिखेगा 3,26,000। एडिशनल बैलेंस दिया था दैट कैन बी परचेस ऑन 1 जनवरी। याद रखो अभी यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेशन के लिए मंथ याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज दिए क्या नहीं। परसेंटेज कब याद रखने होते हैं, क्योंकि हम मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, मतलब परसेंटेज दिए है प्रॉब्लम में, फिर हमें कैलकुलेट करना है तो ही हमें याद रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू क्या दी है, एडिशनल फर्नीचर परचेस क्या है, ये है फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, ये है एडिशनल फर्नीचर 78,000, देन टोटल इज 4,04,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया था 3 लाख रुपीज़। तो माइनस करते 4,04,000 माइनस 3 लाख, सो डिफरेंस अमाउंट इज व्हाट 1,04,000. What is 1,04,000? So 1,04,000 is a depreciation amount. So what we do, अगर 1,04,000 डेप्रिसिएशन अमाउंट है तो हमेशा याद रखो ये कहाँ पे जाएगा, डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। अंडरस्टूड। ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये क्लोजिंग बैलेंस है, जो रिसीट एंड पेमेंट में लास्ट वन बैलेंस दिया था ये बैलेंस है वो। एक बार फिर से डेप्रिसिएशन की अमाउंट दिखा दूँ कैसे पोस्ट की है, ये देखो बिल्डिंग की और ये फर्नीचर की। एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ओके ठीक है। फिर अभी टैली करते, टैली करने के बाद ऐसे दिख रहा है यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकम। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकम, तो क्या होता है डिफिशिएट, क्या होता है डिफिशिएट। तो यहाँ पे लिखा है डिफिशिएट कितने रुपीज़ का है 4,15,000। सो व्हाट वी डू, वो ऐड होगा या लेस होगा अंडर कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में से वो क्या होगा लेस होगा, क्या होगा लेस। तो यहाँ पे देखो we deducted that one amount from capital fund 4,15,000. How many? 4,15,000. Everybody understood? Okay. How to transfer that balance? Okay. Then next one, check both one side is equal, because balance sheet is a statement that can be automatically tally. दोनों भी साइड इक्वली होनी चाहिए उसकी,
डेबिट से मतलब लायबिलिटी साइड में जितने बैलेंस है उतने ही बैलेंसेस एसेट साइड में होने चाहिए. सो आफ्टर टैली our balance sheet total is 15,73,000. How many? 15,73,000. Okay, understood everybody? Confirm? क्या क्या एग्जैक्टली हमने यहाँ पे देखा, क्या क्या एग्जैक्टली देखा हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट में. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करना है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स. तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो लिखो, उसमें एडिशनल बैलेंस ऐड करो और उसमें से क्लोजिंग बैलेंस लेस करो. जो भी डिफरेंस दिखेगा दैट डिफरेंस इज योर डेप्रिसिएशन अमाउंट. अंडरस्टूड एवरीबडी? अदरवाइज नोट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. क्योंकि इसके बाद जैसे आपको आज तक टेक्सचुअल प्रॉब्लम में ऐसे ही आते थे ना, MCQ आते तो जस्ट ओनली ये है नहीं है ये इसके तरफ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट मीन बाय लीगैसीज, इस टाइप से आते थे. इसके बाद कैलकुलेशन भी आने वाला है बोर्ड. जैसे 11th स्टैंडर्ड में हमने कैलकुलेशन के लिए भी रखा था, याद होगा आपको 11th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न, तो वहाँ पे कैलकुलेशन भी आया था आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में. तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए भी आ सकता है. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो फॉर्मूला क्या है, बुक वैल्यू ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स एड एडिशनल वैल्यू माइनस क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के अंदर ऐड करो एडिशनल माइनस क्लोजिंग बैलेंस. देन यू कैन फाइंड आउट इजीली you can find out depreciation amount. Understood everybody? Confirm? Okay. सेम फर्नीचर के लिए भी कैलकुलेट किया और बुक के लिए भी कैलकुलेट किया. अगर डेबिट साइड ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो दैट वन इज अ डिफिशिएट. और क्रेडिट साइड ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, तो क्या आता है, सरप्लस. जैसे अब वहाँ P&L अकाउंट था, सेम एज इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है. ओके. देन और क्या देखा था हमने यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर लीगैसिस के लिए कैपिटलाइजेशन दिया था, तो डायरेक्टली हम ट्रांसफर टू कैपिटल अमाउंट. अभी यहाँ पे फर्नीचर के लिए ब्रैकेट में परचेस ऑन 1 जनवरी 19 लिखा, तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा उसके ऊपर. क्यों नहीं होगा, बिकॉज डायरेक्टली हम हाँ अमाउंट फाइंड आउट कर रहे, जो भी फॉर्मूला मैंने बताया यूजिंग दैट वन भी फाइंड आउट कर रहे. तो यहाँ पे कोई परसेंटेज दिए है क्या बुक के अंदर, नहीं दिए है. अगर परसेंटेज देख के आते हैं तो ही हमें याद रखना है कि कैसे कैलकुलेट करना है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देखो इस प्रॉब्लम में एग्जैक्टली हमें क्या, हमें फिर से एक बार बताती हूँ. इस प्रॉब्लम में हमने एग्जैक्टली देखा, नो नीड टू कैलकुलेशन ऑन फर्नीचर यूजिंग दैट वन अमाउंट. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये अमाउंट मतलब जो भी डेट दी है उसकी ज़रूरत नहीं हमें. सिर्फ अमाउंट लेंगे है एज इट इज़, उसके हाफ या 3 मंथ के लिए अमाउंट कैलकुलेशन नहीं करेंगे. ये सिर्फ एसेट के बारे में. और नहीं तो आप ये रूल्स अप्लाई करने वाले करो मतलब अप्लाई हो कर सकते हो एक्सपेंसेस के लिए. एक्सपेंसेस के लिए नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन किसके लिए, एसेट के लिए. एडिशनल एसेट दी है, उसके नीचे डेट दिए है और आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दी इतने परसेंटेज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. अगर वहाँ पे दे के आता है इतने इतने दिन के लिए या इतने इतने परसेंटेज लिखो, लाइफ ऑफ एसेट डी है, तो ही वो डेट हम कंसिडर करेंगे. फिलहाल ये डेट कंसिडर नहीं करने वाले. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? डेट के बारे में याद रखो, इसीलिए इस प्रॉब्लम में हमने उस एसेट की डेट कंसिडर नहीं की है. देन नेक्स्ट वन देखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ लीगैसिस. अगर कोई भी अमाउंट फुल्ली कैपिटलाइज होती तो उसका इफेक्ट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड नहीं करते हो, डायरेक्टली कैपिटल फंड के अंदर ऐड करते तो भी चलता है. क्योंकि वैसे भी वो अमाउंट अगर आप नील करते हो, लेस करते हो, तो वो अमाउंट क्या होगी, नील ही होगी. बेटर वे यू कैन राइट, आपका टाइम बचा और आप कहाँ पर डायरेक्टली पोस्टिंग करो उसकी कैपिटल फंड के अंदर ऐड. ओके. कोई भी अमाउंट कैपिटलाइज होती है या कैपिटल लिख के आता है तो हमेशा याद रखना वो होल अमाउंट विल ट्रांसफर टू कैपिटल फंड. याद रहेगा सबको? ओके. देन नेक्स्ट वन थिंग वी लर्न
इन द चैप्टर इज रिलेटेड टू एडिशनल, तो वो भी देखा था। कैपिटल फंड की क्लोजिंग बैलेंस हमें मिली क्योंकि उसके अंदर एडिशनल डोनेशन ऐड किया 60%, सो अमाउंट मिल गई। कैपिटल फंड की भी मिली, बिल्डिंग फंड की भी मिली। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। और ये तो आपको पता ही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसके अंदर ऐड, और दूसरा वाला इफेक्ट कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्यों होता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसका कोई रीज़न है? यस है। क्या है रीज़न? तो बैलेंस शीट ऐड क्यों होता है ये तो पता होगा ना। करंट ईयर के एक्सपेंसेस हमें करंट ईयर में ही दिखाने हैं, या इनकम जो भी है, दैट्स वाई इस ईयर के लिए वो तो देनी है, अमाउंट देनी ही होगी ना, तो इस ईयर की है, दैट्स वाई उसके अंदर ऐड होगा। और ये अब अमाउंट अब तक हमने नहीं दी है, पेबल है, देने वाले है। तो जो भी अमाउंट पेबल है, नॉट अ पेड, पेबल, तो वो पेबल अमाउंट हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। दैट्स वाई इसका सेकेंड इफेक्ट हमने कहाँ पे किया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कंफर्म। इस प्रॉब्लम में हमने क्या क्या एग्जैक्टली देखा, वो आपके बुक के अंदर आप कुछ तो नोट्स लिखते होंगे कि आज मैंने ये वीडियो देखा, तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या एग्जैक्टली देखा ये नोट डाउन करते जाओ डेली। क्यों? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता, कुछ भी दिक्कत आ सकता, तो आप रेफर कर सकते हैं ना उस पॉइंट को, इस प्रॉब्लम यहाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक प्रॉब्लम आया है या सॉल्व करने के लिए बोला है, तो वहाँ पे एसेट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, तो उस टाइम क्या करना है, अगर आपने नोट डाउन किया होगा आपके नोटबुक में, तो आपको आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, या इसके लिए वर्किंग नोट क्या है। फिलहाल तो हम अभी क्या देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो दैट्स वाई आपके पास टेक्स्ट बुक सामने होगी और टेक्स्ट बुक से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट आफ्टर वन प्रॉब्लम में भी, एक प्रॉब्लम होने के बाद मैं सॉल्व करने वाली हूँ कौन से वाले प्रॉब्लम, अनसॉल्व प्रॉब्लम। तो अनसॉल्व प्रॉब्लम मतलब आदत डालते हो आप नोट डाउन करने की, तो आप अनसॉल्व में आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एडजस्टमेंट है वहाँ पे, या कुछ डिफ़िकल्ट कंसेप्ट अगर नोट डाउन करके रखते हो, तो आपको कोई भी किस टाइप का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो, आपको आएगा। क्योंकि नोट डाउन करते मतलब इन शॉर्ट यू आर फीड दैट वन कंसेप्ट इन योर माइंड। ओके, ऐसे ही होता है। जैसे कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं होते, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही होते कि अगर नोट डाउन करके रखते हो तो उनके दिमाग में ही वो फिट हो जाता है। तो वैसे ही जो भी कंसेप्ट यहाँ पे मैंने बताया है, कंसेप्चुअली वहाँ पे क्या करो, नोट डाउन करो। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 18 में हमने क्या लिखा है, ऐसे लिख के रखो। कंसेप्ट हमने क्या देखे यहाँ पे, एग्जैक्टली कैलकुलेशन क्या किया है, डेप्रिसिएशन वहाँ पे नहीं दिया था, डेप्रिसिएशन परसेंटेज नहीं दिए थे, तो कैसे कैलकुलेट किया, वहाँ पे पर्टिकुलर एसेट के लिए अमाउंट दी थी और डेट भी दी थी, बट डेट के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन किए थे या नहीं किए थे। ये सब बातें याद रखो या लिख के रखो। याद नहीं रहता है, एवरीबडी नो, दैट्स वाई हम तो अकाउंटिंग करते ना। अगर याद रहता तो कोई अकाउंटिंग नहीं करता। जैसे याद रखता है हमें जीत के इतने पर्सन के पास पैसे आने, इतने पर्सन के पास इनको पर्सन को पैसे देने हैं। इट्स नॉट नीड नॉट टू रिक्वायर राइट डाउन, एन नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं मेरे जिनके पास से पैसे आने और जिनको पैसे देने हैं। सो ये सारे चीज़ें आपको कंपलसरी, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो ना, यहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट लर्न करते हो, मतलब जो भी स्टडी करते हो आपके 5-6 सब्जेक्ट है, तो दैट्स वाई आप क्या करो, उसे नोट डाउन करके रखो। नोट डाउन करते तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको उसके रिलेटेड कोई कंसेप्ट है तो दिक्कत नहीं आती है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कंफर्म? ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, कोई भी एसेट के बारे में परसेंटेज, डेप्रिसिएशन परसेंटेज नहीं दिए हैं, बट उस पर्टिकुलर एसेट के लिए एडिशनल अमाउंट दिए है एंड एज वेल एज डेट भी दिए है, तो यहाँ पे वो डेट हमें कंसिडर नहीं करनी है। दूसरी बात, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने बताया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स प्लस एडिशनल बैलेंस ऑफ एसेट्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। Using that one you can easily find out depreciation amount without percentage. ओके, एक्चुअली हमने इसके पहले अलग भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए थे। जो हमारा डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला अलग है, ये नहीं है वो। डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला याद है,
क्या था डेप्रिसिएशन? बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, याद रखो। ओके, देन सेकेंड थिंग, ये थी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर कोई भी पर्टिकुलर के सामने स्पेशली रिसीट में अगर कैपिटलाइज लिख के आता है या कैपिटल वर्ड लिख के आता है, तो डायरेक्टली दैट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, होल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। पैसे जैसे बताया 50%, 90% जो भी बताया वो अमाउंट क्या करो, ट्रांसफर करो कैपिटल फंड के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट वन थिंग यहाँ पे और पढ़ा था, दैट इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर के हैं, दैट्स वाई उस एक्सपेंसेस के अंदर ऐड। एंड सेकेंड इफेक्ट हमने कहाँ पे किया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्यों किया बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड? बिकॉज इज अ पेबल अमाउंट, दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और लास्ट में इसमें हमने पढ़ा था कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकम, तो हमें क्या होता है, डिफिशिएट होता है, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और दैट अमाउंट ऑलवेज लेस फ्रॉम कैपिटल फंड, क्या होती है वो अमाउंट, लेस होती है कैपिटल फंड में से। सेकेंड थिंग, इसके रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा, कि इनकम साइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो उसे हम कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं, सरप्लस। अगर सरप्लस है तो वो सरप्लस कहाँ पे ऐड होता है, कैपिटल फंड के अंदर ऐड होता है। ओके, याद रहेगा सबको, बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली होनी चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा वो ऐड या लेस होता है कैपिटल फंड में। ओके, ये सब हमने देखा था इस प्रॉब्लम के अंदर। ये प्रॉब्लम बहुत फोकस करो क्योंकि इसके रिलेटेड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मतलब जो भी लास्ट ईयर प्रॉब्लम आया था रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सेम एज इट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस टाइप से ही आई थी। जो भी मैंने बताया एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में उसी टाइप से क्या आई थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई थी। मतलब पर्टिकुलर चार्ट दिया था एसेट्स की, हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करनी थी। सबको कंफर्म समझ में आए यहाँ पे क्या करना है, क्या नोट डाउन करना है। ओके, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपकी नोटबुक चेक करने जाती हूँ तो मुझे दिखेंगे, ठीक है, इसके पहले आपने नहीं नोट किए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 18, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 13 है, वीडियो वाला कौन सा 13 नंबर वीडियो ये, तो 13 नंबर वीडियो से तो एटलीस्ट मुझे दिखना चाहिए कि स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम में हमने क्या पढ़ा है ये नोट डाउन किया है। ओके, कंफर्म, यस, याद रखो ये सारी बातें। फ़िलहाल तो मैं डेली टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं शायद वीकली 2 या 3 डेज टेस्ट लूँगी। इसके बाद मैं वीकली 2 या 3 डेज टेस्ट लूँगी। बट आपको जो भी प्रॉब्लम है इसके मतलब इसके रिलेटेड कंसेप्ट में जो भी बताया है वो आपके नोटबुक में होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे थे ना वो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछने वाली हूँ। तो कंसेप्ट क्या बताया था इसके अंदर उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगैसिस के ऊपर हो सकता है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हो सकता है। ओके, वाई वी रिकॉर्डेड डेबिट साइड दैट वन पर्टिकुलर बैलेंस, वाई वी लेस, या लायबिलिटी साइड क्यों लिखा जाता है, एसेट साइड ये क्यों लिखा है, इस टाइप से क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ओके, मतलब आपको क्या समझ में आया उसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो क्या टेस्ट हो सकती है, प्रॉब्लम रिलेटेड टेस्ट हो सकती है। तो दैट्स वाई आपको ये याद रखना है कि जो भी कंसेप्ट आपको समझ में आए या मैंने एक्सप्लेन किए उसके अंदर वो आपको कंपलसरी नोट डाउन करने हैं आपके नोटबुक में। ओके, मैंने आज तक किसी को कुछ भी होमवर्क नहीं दिया था बिकॉज एग्जैक्टली अभी तक हम पढ़ रहे। ओके, एक्चुअली ये जो भी प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सिर्फ वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जैसे P&L बनाते हैं वैसे ही बनाया हमने। ओके, एंड बैलेंस शीट तो वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है। तो मैंने उस टाइम भी बताया था, 11th स्टैंडर्ड में भी बताया था, अगर आप फाइनल अकाउंट परफेक्टली करते हो तो 12th स्टैंडर्ड में आपके 5-6 चैप्टर है रिलेटेड टू दैट वन। अगर आपको फाइनल अकाउंट प्रॉपर आता है
जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 12th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही है पार्टनरशिप फॉर्म का, बट 11th स्टैंडर्ड में हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न का पढ़ा था। अगर वो प्रॉपरली आता तो 5 से 6 चैप्टर आपको ईजिली आएंगे 12th स्टैंडर्ड के, क्योंकि कंसेप्चुअली वही आएगा, एडजस्टमेंट तो वही होती है, सारे में एडजस्टमेंट वही होगी। आउटस्टैंडिंग हो रही है एक्सपेंस, जैसे इनकम, प्रीपेड, देन पेड इन एडवांस, ऐसे ही होंगे। या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, या उसके अंदर वो पर्टिकुलर मशीनरी के अंदर या एसेट के अंदर कोई एक्सपेंस इंक्लूड है, सेम वैसे ही होंगे सारे जगह एडजस्टमेंट। क्यों बदलेंगे नहीं, क्योंकि वही है ना, वो जो हम फाइनल अकाउंट करते तो वो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कर रहे हैं, और ये जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इनका भी मेन मोटो वही है, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन। उनका भी वही मोटो था, बट ये एनजीओ के लिए है, और वो किसके लिए था, ट्रेडिंग फर्म के लिए था। ओके, सो याद रखो ये कंसेप्ट और नोट डाउन करते जाओ डेली। ओके, खायला कोणाचा फोन आलता? एक बार फिर से स्लाइड दिखा रही, पूरी स्लाइड्स देखो, प्रॉब्लम किस टाइप से था। ये था क्वेश्चन, वहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। नेक्स्ट वन ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टैबुलर फॉर्म में भी दिया है, और दो इन्फॉर्मेशन अलग से भी दी है। नेक्स्ट ये है सॉल्यूशन। इसमें पहले वाला अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तो याद रहेगा सबको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, बट लिखते समय एक्सपेंडिचर पहले बाद में इनकम आता है। एंड लास्ट वन हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। इस प्रॉब्लम में हमने ओल्ड बैलेंस शीट नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल फंड के अमाउंट ऑलरेडी दी है। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी, नोट डाउन तो किया होगा। थैंक यू।